अनम्यूट करो। बोल। Hello, testing. Hello. यस, ओके। Okay, thank you. Good morning, everyone, and welcome to today's session. I hope everybody is safe and staying at home with their family and loved ones. Myself, Sonia Lalwani, I'm working with Orange Technolab. The Orange Technolabs Private Limited is an IT software industry since 18 years, and our major domain expertise is payroll and HRMS solution. Today's session is based on the probation and configuration process flow with the professional tax setup. Now, in this session, we will primarily focus on the configuration of probation and confirmation policies with the professional tax setup with the tax labs. Now, without doing a delay, I would like to introduce our today's presenter, Ms. Nidhi and Mr. Sajid Manwa. Sir, hand over this session to Mr. Sajid Manwa so that they can present their valuable inputs. We'll be starting at 11 o'clock. Okay.
Hello everyone and welcome to today's session. Hope everyone is safe and at home with their families. Myself Sonia Lalwani. I'm working at Orange Technolabs. Orange Technolabs Private Limited is in the IT software industry since last 18 years. Our major domain expertise is payroll and HRMS solution. Today's session is based on how to configure probation and confirmation policies with the process flow. And the one most important topic is professional tax setup with the tax labs in the different states all over the India. So without doing a delay, I would like to introduce today's presenters, Ms. Nidhi Pandya and Mr. Sajid Manwa. Let me please invite Ms. Nidhi Pandya for the presentation. Handing over the session to Ms. Nidhi Pandya. Nidhi, you can continue now. Thank you, Sonia. Good morning, everyone. I hope everyone is safe at home. So, myself, Nidhi Pandya, the part of support and implementation team of Orange Technolab. So, today I'll be presenting a brief about the PT, that means professional tax, how to configure that into the Orange, and how to allocate every employee, map with the all branches, map with the states, and applicable to those applicable employees. Okay, so let's just quick start. So in a professional tax setup, you have only 5 major steps, that is branch-wise mapping, state-wise mapping, PT slab configuration, branch-wise general setting, and employee mapping. Here you can also say that in this is 5 checkpoints where you need to take care while implementing a PT into your Orange Technolab. Okay, so if you have any queries or regarding if you find any queries after onwards, you just need to go to these 5 points, these 5 checkpoints, and you get your answer. Okay, so moving forward, our first and foremost step is state-wise mapping. Now, this is either you can say this is mandatory for some of state and not mandatory for some of. Let me brief you. There is some state where PT slab is different for male and female. So in this case, this step is mandatory to implement. So how to open that? Go to the masters where you can find a job master and jump to the state or city master. Here already state name will be defined. If you select, you need to select the applicable PT setting for male and female only. Okay, so as I've told you that for Maharashtra, there is PT slab is different for male and female. So in this case, there should be a tick mark on this point and you need to update before you implement PT slab. Okay, and as I told you, for Gujarat, there isn't any different PT slab for male and female. In this case, if you keep it blank or you can skip this. Yeah. Moving forward, our next step is to branch-wise mapping. Now, in your company, you may also assign a branch by the city name, or either your branch name will be like head office, construction office, or field office, or any kind of you name you might be named as your branch. But you need to very careful whatever your branch name, either by city or head office, anything, you need to have mapped your branch with a particular state. Why? Because in for further step we'll see that we used to map and assign our professional tax lab with branch and also with the state. So if you forget, then in your state name, your branch name will not be replicated, and then you cannot able to define a PT slab. So by branch, you can go to the masters
and go to job master and branch master. Here you can see the branch name, and as you can see on my screen, that state need to be is important and need to be mapped with a particular branch. Moving forward, our third step, and the most important step, is to define a PT slab. Okay, so go to control panel where you'll find the professional tax settings. You just need to select that particular step. Okay, so as in step number 2, we have seen that we have mapped all our branch with that particular step. So here you can see in my right side, branch name will be replicate, and here it's the Gujarat state. So in second step, I have mapped my all branches. Whichever branches are mapped with state Gujarat will be replicated here. So you need to select all the branches here and then assign a PT slab as per the government norm and just click on update. So it will update it. Now, this is the step where we do not need to repeat or anything. This is just one time of settings. You do not need to do every year or every month. But in such a case where you are defining a new branch, okay, so you need to go to, if you are defining a new branch, then you need to go to this step. You need to go to control panel, professional tax setting, and add that particular branch, define a step, and then you need to update it. Moving forward, as I told you, and as we have seen in the step number 1, that in a state master and in such a state where a slab is different for male and slab is different for female. So in this case, all you need to do is click mark on first male, define the whichever slab is there for male, and then update. Then go to the female and define the slab and update. So now you may get the idea why the first step is required. The first step, that is state-wise mapping, is mandatory for those states where PT slab is different for male and female. Now, my fourth step is branch-wise general setting. So go to the control panel, company general setting, select that particular branch. So here we used to define a branch-wise general setting like a late or lead limits, overtime, compo related settings, and also the salary related settings will be here. Okay, so here you can see I've already highlighted it. In a professional tax setting, you need to tick mark here first. If you forget, if you define a slab, if you define a uh, state with the branch, but you forget to tick mark here, then none of the employee belong to that particular branch will applicable for the professional tax. So yes, you can say this, the fourth step is really mandatory. And or the final and last checkpoint is to map the PT with all employee. You can also say apply a PT to all employee. Now in Orange, we used to add employee by two ways. First, we used to import the file and add an employee, right, by importing the employee master. And second is to add manually and add employees detail and just update. So moving back, in a first, if you are importing employee data by the employee version, there will be a one column named PT applicable, and you need to write 1 or 0. 1 means employee is applicable for the PT, 0 means employee is not applicable for the PT. So if employee is applicable, this is mandatory that you need to fill that column as a 1 and then import. See, as I've told you, if you forget this, then in a salary generation, you'll find this employee is not deducted any PT. This is mandatory part. Again, if you are adding employee manually,
then you need to tick mark here on a PT as I've mentioned, as I've highlighted here. You need to tick mark on PT and then update. So this is the 5 and very easiest step to implement successfully a professional tax setting into the Orange. In a future, if you find any kind of query that employee salaries, employee PT is not deducted into the salary or anything, so in such a way, you can verify at your end first. Verify whether there is a tick mark on PT in employee profile. Verify that in a branch-wise general setting, if there is a tick mark or not. Verify that in a PT slab setting is proper or not, and verify the last and foremost that verify that your state is mapped properly with your uh, branch or not. Okay, so this is the most 5 and easiest way to implement professional tax setting into the Orange. Now, once you set everything, you define your salary structure, then you'll generate the salary, and then employee will be deducted that particular PT based on their gross, right? So every month employee salary, maybe for an example, there is a limit that after 10,000 employee will be deducted 200 rupees. But in such cases, if employee is having a gross lower than 10,000, or it may vary, I mean, first he used to have a gross more than 10,000, he'll be deducted 200 rupees. Now this month he is only two days of attendance, and his gross is become like 300, 3,000 or 5,000. Then based on that, PT value will be verified. Will be if their gross this month his gross is less than 10,000, so he'll be able to that PT. He will be applicable that PT slab. Now, once you generate the salary, you need to check the PT statement. So before that, we will facilitate you to generate the challan as well from the orange payroll. So how can go to the salary, then go to the challan, where you will be find PT challan. All you need to do is go to the PT challan, tick mark on add. As I've shown you into this mention image, all once you will add, you will find the details, right? Then you need to add the date of payments, name of the bank, whatever the details you need to fill here, and just save. Now your PT challan will be generated. So how? Go to the reports, go to the PT reports, where you will find PT statement, select that particular month, and select all employee and just export. So this can be a preview report. You can download into the PDF, into the Excel as well, here, where you will find the employee code, the details, the PT applicable amount, and the actual deducted PT with all sum total. So this is all how this is very simple to implement PT at your end. If you find any query, you can be your boss. You can check it by yourself as well. So before ending my session, here is some bonus point. Here you can see the PT applicable state, where is PT applicable or not, where is PT is not applicable. The here listed is state where is PT is not applicable. Also, I've mentioned here a link from where you can find various PT related circular shared by the government, where PT is excluded, the new rules regarding PT, everything you will find here. So we'll at the end of the session, we'll share this document to all. And thank you very much. If you have any query, you can comment here. And I'll like to hand over to Sonia. Hello. Thank you so much, Nidhi. Now, I will hand over this session to Mr. Sajid Malma for probation to confirmation process flow. Over to you, Sajid ji. Good morning, everyone. My name is Sajid Manwa.
I'm part of the implementation consultant. I hope all are view the professional tax के पीटी का जो सेटिंग्स रहता है वो आपको निधि ने बताया कि किस तरह पीटी सेटिंग करना है। तो आई रिकॉल सम फीचर्स रिगार्डिंग द पीटी। जैसे कि पीटी होता है वो स्टेट वाइज रहता है। जैसे कि महाराष्ट्र का पीटी होता है, उसका स्टेट गवर्नमेंट का रूल्स होता है, स्टेट गवर्नमेंट का जो डिसाइडेड होता है कि पीटी का जो स्लैब हो स्टेट वाइज डिफरेंट रहता है हर स्टेट में। तो जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर आपको बताया कि मेल और फीमेल वाइज रहता है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर क्या है कि मेल का पीटी सेटिंग डिफरेंट है और फीमेल का डिडक्शन डिफरेंट है। तो उसके लिए आपको क्या है कि जो सिटी मास्टर होता है उसके अंदर अपने एप्लीकेबल करते हैं पीटी। तो अगर सिटी मास्टर में अपने एप्लीकेबल करेंगे तो वो मेल और फीमेल वाइज आपका पीटी सेटिंग एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज आपका स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा जो सभी कॉमन यानी कि मेल और फीमेल के दोनों के लिए कॉमन रहता है। उसके साथ साथ मैं बताता चलूं आपको कि जो पीटी सेटिंग करने के बाद आपको हर ब्रांच मास्टर रहता है उसमें स्टेट डिफाइन करना पड़ता है। जैसे कि आपको निधि ने बताया कि जो भी नया अगर ब्रांच क्रिएट करते हो इन फ्यूचर, फॉर एग्जांपल क्रिएट करते हो आप महाराष्ट्र या तो फिर उड़ीसा, तो उसके साथ साथ में कोई भी आप सिटी का क्रिएट करते हो ब्रांच तो उसका स्टेट मास्टर आपको डिफाइन करना कंपलसरी है। जब तक स्टेट मास्टर कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा ब्रांच मास्टर के अंदर तब तक आप जनरल सेटिंग के अंदर पीटी स्लैब एप्लीकेबल उसका नहीं कर पाओगे प्रॉपर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ब्रांच मास्टर के अंदर स्टेट मास्टर जो है वो डिफाइन करना जरूरी है। फिर जो आपको पीटी का जो स्लैब बताया तो इन केस अगर कोई गवर्नमेंट का जो स्लैब होता है कि फरवरी के अंदर डिफरेंट रहता है, तो आप जो पीटी का जो सेटिंग होता है कंट्रोल पैनल के अंदर प्रोफेशनल टैक्स सेटिंग होता है। उसके अंदर जो सेटिंग होता है जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर है कि फरवरी के अंदर अपने 300 रुपये डिडक्ट करना है, तो आपको ये जो प्रोफेशनल टैक्स का जो सेटिंग रहता है वहां पे अपने को सेट करना पड़ता है कि फरवरी के अंदर 300, फिर ओवरऑल नेक्स्ट टू मार्च के अंदर ऑटोमेटिक वही का वही जो रहता है वो सिर्फ एक ही मंथ में डिफरेंट रहता है। तो उसके हिसाब से अपने को प्रोफेशनल टैक्स का जो सेटिंग रहता है वो कंट्रोल पैनल में प्रोफेशनल टैक्स में अपने को मंथ सिलेक्ट करके सेट करना पड़ता है। नेक्स्ट तो मैं फिर वही बता रहा हूँ कि और नेक्स्ट जैसे कि आपने मेल और फीमेल वाइज तो जो जैसे प्रोफेशनल टैक्स महाराष्ट्र का सिलेक्ट करेंगे टैक्स के अंदर तो मेल और फीमेल का जो होता है उसमें आपको अलग अलग सिलेक्ट करके असाइन करना पड़ता है और मेल और फीमेल वाइज स्लैब सेट करना पड़ता है। तो जैसे कि जनरल सेटिंग में टिक मार्क किया हुआ है और एम्प्लॉय मास्टर में एप्लीकेबल करना पड़ता है पीटी। जब तक एम्प्लॉय मास्टर में पीटी के ऊपर टिक नहीं होगा तब तक उस एम्प्लॉय का जो पीटी होता है प्रोफेशनल टैक्स वो उसकी सैलरी में से डिडक्ट नहीं होगा। इन केस अगर किसी का डिडक्ट नहीं हो रहा है तो आप यही एम्प्लॉय मास्टर में जाके चेक कर सकते हो कि इसका एप्लीकेबल है कि नहीं है, पीटी पे टिक है कि नहीं है। अदरवाइज टिक नहीं है तो वो डिडक्ट नहीं होगा, अगर टिक है तो वो डिडक्ट होगा। अगर उसके हिसाब से भी नहीं हो रहा है तो आपको ब्रांच मास्टर चेक करना है कि उसका जो स्टेट मास्टर कॉन्फ़िगर किया है कि नहीं किया हुआ है। अगर स्टेट कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया हुआ होगा तो वो पीटी नहीं डिडक्ट होगा। फिर होता है सैलरी में से जब सैलरी आप प्रोसेस करोगे उसके बाद एक पीटी का जो रिपोर्ट निकलता है, जो लेटर्स होता है पीटी चलन होता है जो आपको स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो पीटी का जो चलन रहता है वो आपको सबसे पहले तो चलन सेव करना पड़ता है। जो कंट्रोल पेन अपने वो उसका पाथ दिया हुआ है कि जो सैलरी डिटेल्स के अंदर चलन के अंदर पीटी चलन में है वो एवरी मंथ आपको ये चलन सेव करना है। तो आपको इसमें टोटल काउंट मिलेगा
कि कितने एम्प्लॉय का टोटल पीटी करा है, किया कटा हुआ है और उसका कितना अमाउंट है, राइट। तो वो आपको इस चलन में सेव करोगे तो आपको रिपोर्ट मिल पाएगा चलन। तो जो चलन का रिपोर्ट है पीटी का, ये डिफरेंट 2 टाइप के रिपोर्ट होते हैं चलन के अंदर। एक पीटी का स्लैब वाइज के, जैसे कि गुजरात है तो फर्स्ट स्लैब में कितने बंदे आ रहे हैं, सेकंड स्लैब में कितने बंदे आ रहे हैं, थर्ड स्लैब में कितने बंदे आ रहे हैं, तो वो रिपोर्ट होता है। इसके अलावा ये भी रिपोर्ट है एक जो आप देख रहे हो। तो हर एक ब्रांच वाइज, हर एक स्टेट वाइज पीटी का रूल्स डिफरेंट डिफरेंट होता है। अब मैं आपको बताता चलो आगे कि जो हमारा जो दूसरा मॉड्यूल है प्रोबेशन टू कंफर्मेशन का मॉड्यूल है, वो आपको मैं उसका अपने बता रहा हूँ। वो तो मैं अब आपको प्रोबेशन एंड कंफर्मेशन की पॉलिसीज जो होती है, जो ऑरेंज एचआरएमएस सॉफ्टवेयर में कैसे कॉन्फ़िगर करना है, हाउ टू कॉन्फ़िगर इन ऑरेंज एचआरएमएस प्रोबेशन एंड कंफर्मेशन पॉलिसी। तो जो प्रोबेशन एंड कंफर्मेशन का जो मॉड्यूल है उसके अंदर क्या क्या टेबल ऑफ कंटेंट है वो आपको मैं थोड़ा ब्रीफ कर रहा हूँ। जैसे कि द फ्रेमवर्क ऑफ प्रोबेशन एंड ट्रेनिंग, अपॉइंटमेंट विद प्रोबेशन एंड ट्रेनिंग, कोई भी बंदे को आप प्रोबेशन और ट्रेनिंग में अपॉइंटमेंट कर सकते हो। एक्सटेंशन ऑफ प्रोबेशन एंड ट्रेनिंग पीरियड, अगर किसी का प्रोबेशन ओवर हो रहा है तो आप तो उसको एक्सटेंशन भी कर सकते हो कि और 10 दिन और 15 दिन बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो। उसी तरह ट्रेनिंग का भी आप बढ़ा सकते हो। ट्रेनिंग टू प्रोबेशन ट्रांसफर, फॉर एग्जाम्पल आपने अपॉइंटमेंट कर लिया ट्रेनिंग को, अब ट्रेनिंग को आपको ट्रांसफर करना है प्रोबेशन में, तो आप ट्रेनिंग टू प्रोबेशन ट्रांसफर भी कर सकते हो। अगर किसी का प्रोबेशन टू कंफर्म कर रहा है तो आप प्रोबेशन टू कंफर्मेशन भी कर सकते हो। फिर इसमें लेटर्स भी आएगा, रिपोर्ट्स भी आएंगे, मल्टीपल रिपोर्ट्स आएंगे, जैसे कि प्रोबेशन टू कंफर्मेशन का लेटर आएगा। फिर इसके अंदर ईमेल अलर्ट्स भी अवेलेबल है, जैसे कि एचआर को नोटिफिकेशन जाएगा कि कितने बंदों का प्रोबेशन ओवर हो रहा है। एम्प्लॉय को भी नोटिफिकेशन जाएगा कि मेरा इस डेट को मेरा प्रोबेशन ओवर हो रहा है। फिर इसमें आप वर्क फ्लो भी डिजाइन कर सकते हो, अप्रूवल वर्क फ्लो। जैसे कि कोई बंदा अपॉइंटमेंट किया है अपने प्रोबेशन का, तो वो कौन अप्रूव करेगा उसका वर्क फ्लो, अप टू 5 लेवल तक आप उसको अप्रूवल फ्लो सेट कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इसमें बेनिफिट्स मैनेजर के लिए भी क्या है, बेनिफिट्स मैनेजर क्या क्या मॉनिटर कर सकता है इसमें, वो भी मैं आपको बताता हूँ। मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय उसके अंडर, मैनेजर जो है उसके अंडर का जो भी एम्प्लॉय है उसका वो मॉनिटर कर सकता है परफॉर्मेंस। बिल्ड अप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मैनेज कर सकता है। कंडक्ट परफॉर्मेंस रिव्यू एंड प्रोवाइड फीडबैक, यानी कि मैनेजर उसका जो अंडर का एम्प्लॉय का जो भी ट्रेनिंग पीरियड हो या प्रोबेशन पीरियड हो वो रिव्यू कर सकता है। जैसे कि कोई भी रिव्यू कर सकता है, जैसे कि एट्रीब्यूट्स क्रिएट किया हुआ है वो रिव्यू कर सकता है। फोर्थ, डिसाइडेड द कंफर्मेशन और एक्सटेंशन ऑफ द एम्प्लॉय, मैनेजर डिसाइडेड कर सकता है कि इसको कंफर्म करना है या एक्सटेंड करना है। नेक्स्ट स्लाइड, जैसे कि वर्क फ्लो रहता है ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट विद प्रोबेशन एंड ट्रेनिंग, यानी कि एक फ्लो रहता है कि 1 2 3 लेवल। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कोई बंदे को अपॉइंटमेंट किया तो प्रोबेशन के अंदर या ट्रेनिंग के अंदर, फिर उसका जाता है वो जैसा जिस तरह उसका जो डिसाइडेड किया हुआ होगा मंथ आपने, जैसे कि हर एक कंपनी का पॉलिसी डिफरेंट डिफरेंट रहता है। कोई कंपनी 6 मंथ प्रोबेशन देती है, कोई कंपनी 9 मंथ देती है, कोई कंपनी 12 मंथ देती है। उस तरह हर एक कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशन डिफरेंट डिफरेंट रहता है बेस्ड ऑन योर पॉलिसी, कंपनी पॉलिसी। तो सबसे पहले आप कोई भी बंदे को अपॉइंटमेंट करोगे या उसको प्रोबेशन में करो या ट्रेनिंग में करो, उसके बाद उसका जब भी उसका 6 मंथ कंप्लीट होगा या 9 मंथ जो बेस्ड ऑन पॉलिसी, तो उसके बाद उसको वन जो प्रोबेशन टू यानी कि नोटिफिकेशन आएगा मैनेजर को। उसके बाद आप कंफर्मेशन लेटर विल बी प्रोवाइडेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड, यानी कि किसी का भी प्रोबेशन कंप्लीट हो जाता है
तो आप उसको कंफर्मेशन लेटर दे सकते हो। तो मैं आपको आगे बताता हूं कि कैसे कॉन्फ़िगर करना है ऑरेंज HRMS के अंदर जो अपना कंफर्मेशन मॉड्यूल है, कैसे इंप्लीमेंट कर सको आप इजीली, वो आपको मैं आज बताने जा रहा हूं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो अपना सॉफ्टवेयर में आप जैसे एडमिन लॉगिन करोगे, तो आपको जैसे कि कंट्रोल पैनल के अंदर ब्रांच मास्टर कंपनी जनरल सेटिंग है, तो कंट्रोल पैनल के अंदर जो कंपनी का जनरल सेटिंग है वो हर एक ब्रांच वाइज रहता है, डिफरेंट डिफरेंट। तो ब्रांच वाइज आपको कंपनी जनरल सेटिंग करना है। उसमें जो लास्ट टैब है अदर सेटिंग, उसके अंदर आपको डिफाइन करना है कि प्रोविजन पीरियड सेटिंग, जो आपको मैं अभी कर्सर ले जा रहा हूं, तो यहाँ पे आपको सेट करना है प्रोबेशन पीरियड कंप्लीशन ऑफ पीरियड। जैसे कि यहाँ पे अभी मैंने 6 मंथ डाला हुआ है, एंटर किया हुआ है। तो बेस्ड ऑन डिपेंड्स ऑन पॉलिसी, मंथ वाइज भी कर सकते हो और डे वाइज भी कर सकते हो। आप समझ लो कि आपको कंपनी का पॉलिसी है कि 250 डेज आफ्टर कंप्लीटेशन प्रोबेशन का पीरियड का 250 डेज है, तो आप डेज वाइज भी कन्वर्ट डाल सकते हो और मंथ वाइज भी। उसके साथ साथ वेजिस अमाउंट, अगर वेजिस अमाउंट आपको सेट करना है तो आप वेजिस अमाउंट भी सेट कर सकते हो। फिर डेप्यूटेशन रिमाइंडर डेज, यानी कि समझ लो कि किसी का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो रहा है, तो आपको रिमाइंडर आए 30 डेज पहले रिमाइंडर आ जाए कि इस डेट को इस बंदे का प्रोबेशन कंप्लीट हो रहा है। तो आपको रिमाइंडर के डेज भी यहाँ पे आप सेट करोगे तो उतने दिन पहले आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। और शो ऑल प्रोबेशन रिकॉर्ड्स का टिक मार्क है, जो आपको मैं बताता हूँ कर्सर ले जाके, तो वो आपको टिक करना है। जैसे ऑल एम्प्लॉय का आपको जितने भी लोगों का पेंडिंग रिकॉर्ड्स होगा वो वहां पे आपको डिस्प्ले होगा। फिर लीव आफ्टर मंथ, आपका लीव पॉलिसी अगर प्रोबेशन के बेस पे है तो आप यहीं पे सेट कर सकते हो कि कितने मंथ के बाद आपको एम्प्लॉय को लीव देना है। तो लीव आफ्टर मंथ, यहाँ पे आप मंथ डाल देंगे तो आफ्टर लीव मिलेगा, उनको लीव मिलेगा उसके बाद। इसके हिसाब से आप ग्रॉस सैलरी भी सेट कर डिसाइडेड कर सकते हो इसमें। और कॉन्ट्रैक्ट रिमाइंडर डेज, इसमें और एक भी है कॉन्ट्रैक्ट रिमाइंडर। अगर कॉन्ट्रैक्ट रिमाइंडर है तो वो भी आप यहाँ पे रिमाइंडर के लिए डेज डाल सकते हो। उसके साथ साथ है नीचे एक प्रोबेशन रिव्यू पीरियड है, उसमें हमने 2 सेट किए हुए हैं, एक ईयरली, हाफ ईयरली और ईयरली। तो उसमें आप सेट कर सकते हो हाफ ईयरली या ईयरली, तो वो रिव्यू भी कर सकते हो आप वन मिडल ऑफ द मंथ। उसके साथ नीचे जो है ट्रेनिंग पीरियड सेटिंग है। ट्रेनिंग पीरियड सेटिंग में भी आप उसी तरह जैसे कि मंथ और डेज में आप डाल सकते, डिपेंड्स ऑन योर पॉलिसी कंपनी, आप मंथ और डेज के हिसाब से आप डाल सकते हो। उसका भी रिमाइंडर है कि कितने आपको कितने दिन के पहले आपको रिमाइंडर चाहिए, होम नोटिफिकेशन चाहिए होम पेज के पे, तो आपको यहाँ पे 30 डेज अभी एंटर किया हुआ है, तो 30 डेज के अंदर दिखने मिलेगा आपको। उस तरह रिव्यू का पीरियड भी आप सेट कर सकते हो अगर रिव्यू करना है तो। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ कि अब जनरल सेटिंग तो अपनों कर दिया, अब उसके बाद होता है एक स्कीम कॉन्फ़िगरेशन, जो आपको मैंने बताया कि वर्क फ्लो, अप्रूवल वर्क फ्लो, कि कैसे ये जो प्रोबेशन का अप्रूवल किस तरह होगा, तो उसके लिए अपने को स्कीम बनाना है। तो मैंने अभी 2 स्कीम बनाई है, एक प्रोबेशन और एक ट्रेनी की। तो ये स्कीम कैसे बनाना है उसका भी मैंने पाथ बता रहा हूं मैं आपको, कि कंट्रोल पैनल के अंदर स्कीम के अंदर स्कीम मास्टर है, उसमें जाके आप ऐड करके प्रोबेशन और ट्रेनिंग की स्कीम बनानी है अपने को। फिर उसके बाद आएगा स्कीम डिटेल्स, वो पहले तो अपनों ने स्कीम बना दी, अब स्कीम में कौन कौन अप्रूव करेगा वो डिसाइडेड करना है। ओके, तो इसमें जो बताया है अभी, जो वो भी कंट्रोल पैनल के अंदर स्कीम के अंदर स्कीम डिटेल्स है, उसके अंदर है
ठीक है। तो उसके अंदर जैसे कि मैं आपको अभी ये डिस्प्ले आपको हो रहा है कि प्रोबेशन का जो स्कीम है वो भी रिपोर्टिंग मैनेजर अप्रूव कर रहा है और ट्रेनिंग का जो अप्रूवल है वो भी रिपोर्टिंग मैनेजर अप्रूव कर रहा है। तो ये अपने अप टू 5 लेवल तक अपने अप्रूवल लेवल रख सकते हैं। तो वो कैसे क्रिएट करना है वो आपको मैं बता रहा हूँ। ये जैसे कि स्कीम डिटेल्स में आए तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट ऐड करेंगे स्कीम डिटेल्स के अंदर। तो आपको सिलेक्ट करना है स्कीम टाइप, फिर लेना सिलेक्ट करना है स्कीम प्रोबेशन, फिर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है रिपोर्टिंग मैनेजर या प्रोबेशन मैनेजर। इसमें और दो है, प्रोबेशन के अंदर दो टाइप के हैं, एक रिपोर्टिंग मैनेजर के पास भी करवा सकते हो या तो आप फिर प्रोबेशन मैनेजर के पास। इसमें आपने अगर प्रोबेशन मैनेजर डिफाइन किया हुआ है सॉफ्टवेयर में उस एम्प्लॉय का, तो प्रोबेशन मैनेजर के पास करवाना है तो प्रोबेशन मैनेजर भी अप्रूव कर सकता है। इस तरह आप यहाँ पे अप टू 5 लेवल तक सेट कर सकते हो स्कीम। जैसे ही आप स्कीम क्रिएट करोगे सेव करोगे, उसी तरह ये ट्रेनिंग का स्कीम मैंने बनाया है। तो स्कीम सिलेक्ट करना है, टाइप ट्रेनिंग, स्कीम का नेम भी ट्रेनिंग है। इसमें रिपोर्टिंग मैनेजर फर्स्ट एक ही लेवल रखा है, अभी दोनों में अप्रूवल के लिए एक ही लेवल है। जिस तरह आप सेव करोगे तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि प्रोबेशन की जो स्कीम है वो 1 लेवल है, रिपोर्टिंग मैनेजर सिर्फ अप्रूव करेगा। ट्रेनिंग का है वो भी 1 लेवल है, रिपोर्टिंग मैनेजर अप्रूव करेगा। अब मैं आपको नेक्स्ट दिखा रहा हूँ कि अगर किसी बंदे का आपको रिव्यू करना है, प्रोबेशन एम्प्लॉय का या ट्रेनिंग एम्प्लॉय का, अगर आपको स्किल एंड एट्रीब्यूट्स भी आपको डिफाइन करना है तो आपको स्किल एंड एट्रीब्यूट्स अपने को क्रिएट करना है। ये एक्चुअली मैंडेटरी नहीं है, अगर डिपेंड्स ऑन योर कंपनी पॉलिसी। अगर आपके वहाँ पे स्किल और एट्रीब्यूट्स आप नहीं लेते हैं एम्प्लॉय के, प्रोबेशन एम्प्लॉय या ट्रेनिंग एम्प्लॉय के, तो ये आप क्रिएट नहीं करना है। अदरवाइज अगर आपको लेना है कि मैनेजर कैन एंटर अंडर एम्प्लॉय रिव्यू, यानी कि मैनेजर उसके अंडर का जो भी एम्प्लॉय का प्रोबेशन या ट्रेनिंग कंफर्म करेगा, तो उसका अगर आपको रिव्यू करना है कि ये उसका नॉलेज कितना है, क्या है परसेंटेज वाइज, तो आप ये क्रिएट करना जरूरी है उसके लिए। तो जैसे अभी मैंने क्रिएट किया हुआ है स्किल, तो स्किल कहाँ से क्रिएट करना है वो आपको मैं बताता हूँ। मास्टर के अंदर ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन है, उसके अंदर स्किल और एट्रीब्यूट्स मास्टर है, वहां से मैंने क्रिएट किया ऐड करके। तो अभी मैंने 3 स्किल बनाई है, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट, 3 स्कीम बनाई है, स्किल बनाई है। ओके, उसके साथ साथ में मैंने एट्रीब्यूट्स भी बनाए हैं जो आप अभी डिस्प्ले आपको हो रहा है कि नॉलेज ऑफ लॉस, टॉकिंग टू अदर टू कन्वे इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली। तो आपको ये क्रिएट करना जरूरी है अगर आपको कुछ रिव्यू के अंदर लेना है तो। स्किल्स एंड एट्रीब्यूट्स, स्किल और एट्रीब्यूट्स दोनों मैंने क्रिएट कर दिया। अब एट्रीब्यूट्स जो क्रिएट किए उसका आपको वेटेज भी डिफाइन करना जरूरी है। अगर वेटेज डिफाइन नहीं करेंगे तो वो एंटर नहीं कर पाएगा उसका जो मार्क्स है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे, अब इसमें भी वेटेज के अंदर भी कैसा है कि आपको प्रोबेशन वाइज और ट्रेनिंग वाइज वेटेज क्रिएट करना है। अब वेटेज भी प्रोबेशन और ट्रेनिंग का, अब उसमें आप डेजिग्नेशन वाइज भी कर सकते हो, डिपार्टमेंट वाइज भी कर सकते हो। ये टोटल 100 रहेगा, आउट ऑफ 100 नहीं जाएगा। तो 100 क्या है, 100 के हिसाब से। तो अभी मैंने जो यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है वेटेज 50% स्किल का वेटेज दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली 50% एट्रीब्यूट का वेटेज ले लेगा। टोटल 100 होगा। तो आप जिस तरह स्किल का डिफाइन करोगे ऑटोमेटिकली वो डिफरेंट होगा, वो ऑटोमेटिकली एट्रीब्यूट में ले लेगा। अब उसके अंदर भी मैंने वेटेज डिफाइन किया है कि स्किल का, तो कम्युनिकेशन का मैं 50 वेटेज दिया है, मार्केटिंग का 25, मैनेजमेंट का 25, तो टोटल स्किल वेटेज है 100 हुआ। उस तरह मैंने एट्रीब्यूट का भी वेटेज डिफाइन किया हुआ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो नॉलेज ऑफ लॉस है उसका 50 किया हुआ है,
50 किया हुआ है। टॉकिंग टू अदर कन्वे इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली 25 किया हुआ है। नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट ऑफ द इंग्लिश 25 किया हुआ है। ओके, तो ये जो एट्रीब्यूट्स है वो अपने को एट्रीब्यूट्स के अंदर वेटेज भी डिफाइन करना जरूरी है। अगर आपने स्किल्स और एट्रीब्यूट्स क्रिएट किया है तो आपको वेटेज भी डिफाइन करना जरूरी है। उसके साथ आपको मैं बताता हूँ नेक्स्ट, आपको जैसे ही आप सेव कर दोगे तो ये आपका सेव हो जाएगा। अब इसमें भी क्या होगा कि एट्रीब्यूट्स जो होता है आपका, उसमें भी आप इफेक्टिव डेट से आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका नेक्स्ट ईयर ये स्किल था, ये एट्रीब्यूट था, तो आपने क्रिएट तो कर दिया। अब नेक्स्ट ईयर समझ लो कि आपका ये एट्रीब्यूट चेंज हो गए, या तो आपका जो एट्रीब्यूट का जो वेटेज है, स्किल का जो वेटेज है वो चेंज हुआ है, डिपेंड्स ऑन कंपनी पॉलिसी, तो आप उसको इफेक्टिव डेट से चेंज कर सकते हो। और डिपार्टमेंट वाइज और डेजिग्नेशन वाइज बोथ आप अलग अलग डिफरेंट तरह से कर सकते हो डिफाइन। तो जैसे कि मैनेजर की डेजिग्नेशन के लिए डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव की डिफरेंट है, तो आप डेजिग्नेशन वाइज भी डिफरेंट डिफरेंट वेटेज डाल सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ आपको स्कोर मास्टर। अब अपनों ने वेटेज तो डिफाइन कर दिया है, ओके, कि इतना वेटेज इसके लिए, इतना वेटेज इसके लिए। अब मैनेजर तो वेटेज के हिसाब से मार्क्स डाल देगा। अब आपको पता चलेगा कि आउट ऑफ 100 है, समझ लो कि 100 में से किसी के 70 मार्क्स आए, रेटिंग आया, तो 70 रेटिंग कहाँ पे जाएगा? तो 70 रेटिंग जैसे इस तरह आपको स्कोर एक क्रिएट करना है। तो ए प्लस, जैसे कि ए प्लस में मैंने मार्क्स दिए है 67 टू 100, बी प्लस में दिया है 34 टू 66, सी प्लस में दिया है 1 टू 33। तो ये जो है वो क्रिएट करना जरूरी है स्कोर मास्टर। और स्कोर मास्टर कहाँ से क्रिएट होता है? तो पाथ है अपना मास्टर के अंदर, ट्रेनिंग प्रोबेशन, थोड़ा जूम कर रहा हूं मैं आपको दिखे, तो मास्टर के अंदर ट्रेनिंग प्रोबेशन, स्कोर मास्टर। तो यहाँ से आप लोग क्रिएट करना है। तो ये स्कोर जैसे क्रिएट करेंगे तो जो एम्प्लॉय होगा प्रोबेशन या किसी का ट्रेनिंग खत्म होता है, तो उसका जो भी स्कोर होगा वो आपको रिपोर्ट लेवल पे दिखेगा। इसका इतना स्कोर आ रहा है तो ये ए प्लस में जा रहा है, बी प्लस में जा रहा है, या सी प्लस में जा रहा है। उसका जो भी रेटिंग होगा उसके हिसाब से वो बताएगा आपको। अब उसके बाद है स्टेप 10। आपको बताया यहाँ पे आपको करना है, अब एम्प्लॉय टाइप क्रिएट करना है। अब एम्प्लॉय टाइप क्या है? तो हर एक एम्प्लॉय मास्टर के अंदर एक डिफाइन होता है। अब एम्प्लॉय टाइप क्रिएट करना है। अब एम्प्लॉय टाइप क्या है? तो हर एक एम्प्लॉय मास्टर के अंदर एक टाइप डिफाइन होता है। तो अब ये टाइप है जो कहाँ से क्रिएट करना है और क्या है। ये टाइप क्रिएट करना है, मास्टर मेनू है, मास्टर मेनू के अंदर अदर मास्टर है, अदर मास्टर के अंदर एम्प्लॉय टाइप मास्टर है। उसमें अपने को क्रिएट करना है, ऐड करके नया क्रिएट करना है। तो अभी मैंने यहाँ पे 3 क्रिएट किए हैं। सबसे पहले परमानेंट, सेकंड है प्रोबेशन, और थर्ड है ट्रेनिंग। तो यहाँ पे आप ये जैसे ये क्रिएट कर दिया है टाइप मास्टर। तो टाइप मास्टर जैसे क्रिएट अपने को क्रिएट करना है कि परमानेंट, प्रोफेशन, ट्रेनिंग। तो कोई भी नया बंदा अपॉइंटमेंट होता है सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड करते हैं, तो उसका भी टाइप अपने को डिफाइन करना जरूरी है। तो उसके लिए आपको टाइप मास्टर क्रिएट करना जरूरी है। तो जैसे आप जब कंफर्मेशन करेंगे एम्प्लॉय को, तो वहां से जैसे कि प्रोबेशन से परमानेंट में आता है, तो आपको वो चेंज करना है टाइप। उसके साथ साथ में यहाँ पे जैसे कि ये लीव इनकेसमेंट रेट 1 है, अगर डिपेंड ऑन योर कंपनी पॉलिसी, कि कंपनी की पॉलिसी है कि प्रोबेशन एम्प्लॉय को लीव का पैसा नहीं मिलता, लीव इनकेसमेंट नहीं होती उसको। तो यहाँ पे अपने जैसे रेट डाला हुआ है कि 1, तो परमानेंट एम्प्लॉय को लीव इनकेसमेंट का पैसा मिलेगा, अदरवाइज उसको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ कैसे एम्प्लॉय क्रिएट करना है। यानी कि एम्प्लॉय जब क्रिएट करते हैं तब वो बंदे को आपको प्रोबेशन में लेना है या ट्रेनिंग में लेना है। ओके,
तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जब एम्प्लॉय कैसे ऐड करना है ट्रेनिंग और प्रोबेशन के अंदर। अब सब तो एम्प्लॉय मास्टर कैसे ऐड करना है, तो मास्टर एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय मास्टर है। ओके, जैसे आप ऐड करोगे एम्प्लॉय मास्टर को, आपने सारी इंफॉर्मेशन फिल कर दी है। ओके, तो यहाँ पे आपको अब कोई भी बंदा, अभी ये बंदा जो अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ वो प्रोबेशन में हमने ज्वाइन किया है, अपॉइंट किया है। ओके, तो यहाँ पे आपको टिक मार्क करना है, प्रोबेशन टिक मार्क करना है, जो आपको दिख रहा है टिक हियर प्रोबेशन, यानी कि यहाँ पे जब आप प्रोबेशन पे क्लिक करोगे तो वो बंदा प्रोबेशन के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके साथ साथ एम्प्लॉय टाइप, जो आपको मैंने पीछे बताया कि एम्प्लॉय टाइप जो क्रिएट किया था आपने, तो ये बंदे को एम्प्लॉय टाइप सिलेक्ट किया है प्रोबेशन। उसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि जो आपने आप पीछे जो स्कीम भी क्रिएट की थी, तो आपको स्कीम भी असाइन करनी है यहाँ पे सिलेक्ट करके, कि उसकी प्रोबेशन वाली स्कीम या ट्रेनिंग वाली स्कीम। तो एम्प्लॉय मास्टर जब आप ऐड करते हो, तो अगर वो बंदा अपॉइंटमेंट किया अपने प्रोबेशन में या ट्रेनिंग में, तो आपको यहाँ पे टिक करना जरूरी है, और ये सिलेक्शन जो आपको बता रहा हूँ आपको। अब उसके बाद में आपको, जैसे आप सेव करोगे ऐड करके, तो आपको जो एम्प्लॉय का जो इंफॉर्मेशन का जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसके अंदर आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली 6 मंथ यहाँ पे आ जाएंगे। जो 6 मंथ कैसे आए ऑटोमेटिकली, तो आपने पीछे फर्स्ट स्लाइड में बताया था आपको मैंने कि जो जनरल सेटिंग के अंदर सेट किया हुआ है 6 मंथ, अगर जनरल सेटिंग में सेट नहीं किया हुआ होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 6 मंथ नहीं आएंगे। तो उसके पहले आपको जनरल सेटिंग तो करना जरूरी है, तो उसके हिसाब से मंथ ऑटोमेटिकली 6 मंथ आ जाएंगे यहाँ पे। उसके साथ साथ में आपको प्रोबेशन का मैनेजर अगर आपको डिफरेंट डिसाइडेड करना है, तो आप यहीं से प्रोबेशन का मैनेजर भी डिफाइन कर सकते हो। अगर डिपेंड्स ऑन योर पॉलिसी, कोई हर जगह पे अलग अलग रहता है, जैसे कि हर एक कोई रिपोर्टिंग मैनेजर ही अप्रूव करता है, कहीं पे होता है कि प्रोबेशन का मैनेजर डिफरेंट है। अगर प्रोबेशन का मैनेजर डिफरेंट है तो आपको यहीं पे सेट करना है प्रोबेशन का मैनेजर। ये आप अपलोड भी कर सकते हो और मैन्युअली भी डिफाइन कर सकते हो। तो ये हो गया प्रोबेशन का, जो एम्प्लॉय मास्टर में कैसे एप्लीकेबल करना है बंदे को वो। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ट्रेनी को किस तरह एप्लीकेबल करना है एम्प्लॉय मास्टर में। तो वही सेम है, सिर्फ क्या है इसमें कि आपको प्रोबेशन नहीं, ट्रेनी पे टिक मार्क करना है। उसके साथ जो एम्प्लॉय का टाइप होता है वो आपको ट्रेनी सिलेक्ट करना है, और उसी एम्प्लॉय को ही आपको स्कीम्स असाइन करना है। जैसे ही आपको ये बंदे को आप सेव करोगे, अपॉइंटमेंट करोगे, तो उसका एक मास्टर मेनू ओपन हो जाएगा वापस। तो वहां पे वही डिटेल्स, यहाँ पे आप जो एम्प्लॉय का पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसके अंदर जो ट्रेनिंग का कंप्लीटेशन पीरियड है ऑटोमेटिकली 6 आ जाएगा। वो कैसे आया, वो भी जनरल सेटिंग के हिसाब से आया, जो आपने जनरल सेटिंग में डिफाइन किया हुआ है 6 मंथ, तो वो ऑटोमेटिकली 6 मंथ यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखा रहा हूँ कि अब ये बंदे आपने अपॉइंटमेंट कर लिए, दोनों बंदे, एक ट्रेनिंग वाला बंदा अपॉइंटमेंट कर लिया और प्रोबेशन वाला बंदा कर लिया। अब वो बंदे का मैनेजर कैसे अप्रूव करेगा उसका प्रोबेशन पीरियड या ट्रेनिंग का पीरियड, वो आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैनेजर उसका लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद एम्प्लॉय को नोटिफिकेशन आएगा, मैनेजर को नोटिफिकेशन आएगा डैशबोर्ड के ऊपर। अब डैशबोर्ड के ऊपर जब नोटिफिकेशन आएगा मैनेजर को, तो बेल आइकॉन के ऊपर बंदा क्लिक कर, बेल आइकॉन में नोटिफिकेशन रहता है, जो भी नोटिफिकेशन एम्प्लॉय को आएगा, कोई भी नोटिफिकेशन हो चाहे, वो नोटिफिकेशन बेल आइकॉन के ऊपर आता है। तो बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करेगा तो उसको दिख रहा है अभी कि प्रोबेशन ओवर का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है। जैसे वो मैनेजर प्रोबेशन ओवर के ऊपर क्लिक करेगा, प्रोबेशन ओवर पे क्लिक करेगा, तो उसका पेज जो है रीडायरेक्ट होगा उसका अप्रूवल के पेज के ऊपर।
यानी कि अप्रूवल के लिए उसको जाना पड़ेगा, वो अप्रूवल के लिए जाएगा। अप्रूवल के फॉर्म में ये आया, क्लिक करने के बाद अब ये अभी जैसे कि अभी एक ही रिकॉर्ड दिख रहा है आपको कि मिस्टर एम ए त्रिवेदी है। अब मिस्टर एम ए त्रिवेदी का प्रोबेशन पेंडिंग है, यानी कि अप्रूवल के लिए आया हुआ है। तो उसका प्रोबेशन एंड डेट भी दिखा रहा है आपको कि अब यहाँ पे मैनेजर क्लिक करेगा प्रोबेशन अप्रूवल के लिए। अब प्रोबेशन अप्रूवल जो है वो क्लिक करने के बाद मैनेजर जैसे क्लिक करेगा, अब ये पेज ओपन हो गया। अब मैनेजर डिसाइडेड कर सकता है कि ये बंदे को मुझे कंफर्म करना है या एक्सटेंड करना है। अगर मैनेजर कंफर्म करता है तो उसको एम्प्लॉय टाइप सिलेक्ट करना है, यानी कि परमानेंट, जैसे कि पहले प्रोबेशन था, अब उसको सिलेक्ट करना है परमानेंट। फिर एम्प्लॉय मैनेजर मेजर स्टैंड भी डाल सकता है। फिर जैसे कि अगर समझ लो कि मैनेजर ऐसा डिसाइडेड कर रहा है कि मुझे एक्सटेंड करना है, तो एक्सटेंड प्रोबेशन पीरियड करेगा तो उसको डेज डालना है कि कितने दिन एक्सटेंड करना है। फिर उसके हिसाब से मैनेजर उसकी जो भी कमेंट्स होती है, मेजर स्टैंड है, मेजर वीकनेस है, रिमार्क्स अप्राइजल है, रिमार्क्स रिव्यू है, ओके। तो मैनेजर ये इतने चीज फिलअप करके सबमिट करेगा। अब इसमें मैंने एट्रीब्यूट्स नहीं लिया है अभी फिलहाल। मैंने एट्रीब्यूट्स जो था अपने ने स्किल जो क्रिएट किया था, वेटेज जो क्रिएट किया था, वो मैंने प्रोबेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं किया हुआ, ट्रेनिंग के लिए किया हुआ है, ओके। तो वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। तो अभी जो प्रोबेशन का है उसमें मैंने एट्रीब्यूट्स और स्किल नहीं लिया हुआ है। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन किया हुआ कि ये बंदे को अपने कंफर्म कर रहा है अभी फिलहाल, ओके। तो जैसे मैं कंफर्म करता हूँ, यहाँ से सबमिट करेगा मैनेजर। तो सबमिट करने के बाद रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली का पॉपअप आएगा। जैसे ही सेव हो जाएगा तो उसका जो पेंडिंग का पेज था उसमें से उसका अप्रूवल में चला गया सीधा रिकॉर्ड। अब जो यहाँ पे 30 डेज दिख रहा है, प्रोबेशन फिनिशिंग विद इन 30 डेज, जो अपनों ने जनरल सेटिंग में डिफाइन किया हुआ है, जो आपको मैंने पहले बताया, तो वही डेज यहाँ पे लेके आता है। तो ये आपको मैंने बताया कि प्रोबेशन अप्रूव कैसे करना है, मैनेजर कैसे करेगा प्रोबेशन अप्रूवल। तो उस तरह ये समझ, जैसे कि ये मल्टीपल लेवल है, आपके 2 लेवल है, 3 लेवल है। तो जैसे फर्स्ट लेवल ने अप्रूव कर दिया, उसके बाद वो सेकंड लेवल पे जाएगा। सेम थिंग है उस अप्रूवल के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रेनिंग का कैसे अप्रूव करना है। सेम चीजें, जैसे प्रोबेशन के लिए नोटिफिकेशन आया था बेल आइकॉन के ऊपर, उसी तरह बेल आइकॉन जो है अपना, उसमें ट्रेनिंग ओवर का नोटिफिकेशन आएगा। जो भी ट्रेनिंग का अप्रूवल होगा, जो भी मैनेजर होगा बंदे का, उसके ऊपर ट्रेनिंग ओवर का बेल आइकॉन पे मैनेजर को आएगा। जैसे ही मैनेजर क्लिक करेगा ट्रेनिंग ओवर के ऊपर, तो उसको भी एक ट्रेनिंग प्रोबेशन का जो पेज है अप्रूवल का, वहां पे आ जाएगा। वहां पे भी अगर जितने भी पेंडिंग होंगे रिकॉर्ड्स ट्रेनिंग के, वो यहाँ पे मैनेजर देख सकता है कि कितने मेरे अंडर में पेंडिंग है। तो मिस्टर अरुण अत्री का जो ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो रहा है, तो उसको फाइनल करना है। तो अपने यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी एम्प्लॉय का जो ट्रेनिंग होता है, जो ट्रेनिंग है उसको आप एक्सटेंड ट्रेनिंग कर सकते हो। अगर एक्सटेंड करोगे तो आपको कितने दिन एक्सटेंड करना है वो डिफाइन करना है। अगर आप ट्रेनिंग टू प्रोबेशन में लेना चाहते हो, तो अभी आपने यहाँ पे जो लिया हुआ है ट्रेनिंग टू प्रोबेशन लिया हुआ है। अगर ट्रेनिंग को आप सीधा कंफर्म भी कर सकते हो। तो इसमें 3 फ्लो है ट्रेनिंग में से प्रोबेशन में कंफर्मेशन में। अगर आपको डायरेक्ट कंफर्म करना है तो डायरेक्ट भी कंफर्म कर सकते हो। अगर ट्रेनिंग को आपको एक्सटेंड करना है तो एक्सटेंड भी कर सकते हो, और प्रोबेशन में लेना है तो प्रोबेशन में भी ले सकते हो। अभी यहाँ पे इस बंदे को अपनों ने प्रोबेशन में लिया हुआ है। तो प्रोबेशन में जैसे लिया तो उसका और 6 मंथ प्रोबेशन में आ गया। तो नीचे दिख रहा है आपको एक्सटेंडेड इन डेज, 183 डेज हो गया उसका। प्रोबेशन एंड डेट भी यहाँ पे आपको दिख रही है कि 13
अक्टूबर 2020। उसके हिसाब से जो भी आपको सिलेक्शन करना है उसका टाइप वगैरह जो भी टाइप देना है वो, जैसे कि प्रोबेशन देना है तो प्रोबेशन, अगर कंफर्म करना है तो परमानेंट देना है। और उसके अलावा रिमार्क्स है उसका, और अप्राइजल रिव्यू यानी कि जो भी कमेंट्स है मैनेजर की वो कमेंट्स डालना है। अब यहाँ पे ये ट्रेनिंग है, उसमें मैंने ट्रेनिंग में अपने सबमिट नहीं किया अभी, क्योंकि उसके अंदर और एक पेज है जो एट्रीब्यूट्स में मैंने डिफाइन किया है इसमें ट्रेनिंग के अंदर। अब ट्रेनिंग के लिए मैंने एट्रीब्यूट्स एप्लीकेबल रखा है कि किसका कितना स्कोर देना है, रेटिंग कितना देना है। तो यहाँ पे जैसे कि अभी मैनेजर ने एंटर किया हुआ है, इसका कम्युनिकेशन का 40, मैनेजमेंट का 20, मार्केटिंग का 20, उस तरह जो भी एट्रीब्यूट्स है उसके भी 50 में से 50 दिया हुआ है। ओके, तो उसके हिसाब से यहाँ पे टोटल ओवरऑल मास्टर। ओके, तो स्कोर मास्टर है वो अपने को आपको दिखाएगा कि कितना स्कोर बन रहा है उसका। जैसे ही सबमिट करेगा तो वो अप्रूव हो जाएगा, और वो उसका जो भी प्रोविजन में आया या कंफर्मेशन में आया वो आ गया। उसके साथ अब आपको ये हुआ कि मैनेजर कैसे अप्रूव करता है वो मैंने बताया। अब आप फॉर एग्जांपल आपको एडमिन से देखना है कि कितने बंदों का प्रोबेशन ओवर हो रहा है या खत्म हो रहा है, तो वो भी आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रहा हूँ। होम एडमिन पैनल के अंदर होम पेज है, उसके अंदर जो डेप्यूटेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट का जो रिमाइंडर का टैब है वो आपको मैं बताता हूँ जूम करके। तो जैसे आप देख रहे हो कि प्रोबेशन और ट्रेनिंग ओवर यहाँ पे एक दिख रहा है, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको लिस्ट मिलेगा कि कितने बंदों का प्रोबेशन ओवर हो रहा है, ट्रेनिंग हो रहा है। वहां से ही सेम चीज आप अप्रूव कर सकते हो बिहाफ ऑफ मैनेजर। अब उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर के अंदर कौन से लेटर्स अवेलेबल है। तो लेटर्स में क्या है कि इतने सारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट अवेलेबल है इन ऑरेंज HRMS। तो कंफर्मेशन लेटर अवेलेबल है, प्रोबेशन टू कंफर्मेशन अवेलेबल है, प्रोबेशन टू एक्सटेंडेड लेटर अवेलेबल है, ट्रेनी टू कंफर्मेशन लेटर अवेलेबल है। तो इतने सारे लेटर्स 6 लेटर्स से जो अवेलेबल है सॉफ्टवेयर में। उसके अलावा ईमेल अलर्ट्स फॉर प्रोबेशन यानी कि ऑटो ईमेल अलर्ट्स भी भेज सकते हैं अपने। अब कुछ सैंपल्स रिपोर्ट में आपको दिखाता हूँ आगे स्लाइड में। अब किस तरह रिपोर्ट डाउनलोड करना है, तो आपको एडमिन पैनल के अंदर लॉगिन करना है, रिपोर्ट्स के अंदर जाना है, कंफर्मेशन लेटर्स जो टैब आपको मैं दिखाता हूँ, रिपोर्ट लेटर्स, कंफर्मेशन लेटर्स। तो कंफर्मेशन लेटर्स में जाना है आपको। कंफर्मेशन लेटर्स के अंदर जाने के बाद आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा फॉर्मेट निकालना है, और मंथ सिलेक्ट करके फाइंड करना है। तो यहीं से आप एम्प्लॉय सिलेक्ट करके, अदरवाइज एम्प्लॉय को आप रिपोर्ट डाउनलोड भी कर सकते हो, और आप एम्प्लॉय को ईमेल भी भेज सकते हो। कैंडिडेट को आप एम्प्लॉय को ईमेल भी भेज सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर ईमेल भेजना है तो आप क्लिक ऑन योर ईमेल, तो ईमेल जाएगा उसका ऑफिशियल ईमेल आईडी पे, तो आप ईमेल भेज सकते हो। तो जिस तरह अभी डाउनलोड किया जैसे कि रिपोर्ट, तो ये प्रोविजन टू कंफर्मेशन का रिपोर्ट है, सैंपल्स रिपोर्ट्स है। तो इस तरह रिपोर्ट आप डाउनलोड कर सकते हो और एम्प्लॉय को दे सकते हो। तो ये रिपोर्ट है प्रोविजन टू कंफर्मेशन का। इसमें आ जाएगा आपका प्रोविजन एंड डेट, कौन सी डेट को कंफर्म हुआ। उस तरह ये कंफर्म ट्रेनिंग तो प्रोविजन का लेटर्स है कि ट्रेनिंग में से प्रोविजन में बंदा आया, एम्प्लॉय आया, तो वो भी लेटर्स आप निकाल सकते हो। तो ओके, तो थैंक यू एवरीवन। एंड अगर आपको कुछ अच्छा लगा फीडबैक है तो आप फीडबैक के ऊपर भी ईमेल कर सकते हो, और अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए इसके रिगार्डिंग तो हमारा सपोर्ट का जो ईमेल आईडी है उसके ऊपर भी आप ईमेल कर सकते हो। तो आप नोट डाउन कर लीजिए, हमारे ईमेल आईडी है वो भी।
और थैंक यू एवरीवन. I'm hand over to Sonia. Thank you, Sajid ji. Thank you all Now of we you. Thank you so much. Now we are heading over to question answer session. Those who have their concerns, they can raise their concerns in the top bottom question box. We will address their questions. आप रेस कर सकते हो. We have a question from Mr. Kunal. Can OT create all state master for PT? Yeah, the question from Mr. Kunal regarding the professional tech setup state-wise. Nidhi? Yes, sir. I'm not getting the question. Hello? Yeah, can OT created for all state for professional tech? No, no, Okay, no, Kunal, no. we'll... Yes, Nidhi, go ahead. Yeah, for state-wise mapping, if there is a slab, PT slab is different for male and female, then only that particular state you need to define you need to go to state master and tick mark on PT applicable for male and female. If that particular state जिसमें मेल और फीमेल के लिए दो डिफरेंट पीटी स्लैब नहीं है, देन वो मैंडेटरी नहीं है कि आपको स्टेट मास्टर में जाके वो मैप नहीं करना है. Okay, thank you. The second question we got it from Mr. Parth Bhatt. Performance attribute will decide by HR or manager. Mr. Sajid? I repeat the question from Mr. Parth Bhatt. Performance attribute will be decided by HR or a manager. Yes, it can be decided by the... Yeah. Decided the manager. So manager decide करेगा या HR decide करेगा, ऐसा पार्थ जी का कहना है. मैनेजर क्या है कि मैनेजर तो उसका जो वेटेज के हिसाब से उसका जो रेटिंग होगा वो एंटर करेगा, और जो वेटेज है वो तो एडमिन डिसाइडेड करके मैनेजर जो रेटिंग है उसका मैनेजर अजीत का कहना है कि एडमिन से वो आप HR मैनेजर कर पाएंगे, क्रिएट कर पाएंगे. हाँ जी. Third question go to raise from Miss Roma. Once the employee has done self-rating, it goes to his manager, but can he view where and to whom his probation is pending? So आपका कहना है कि आपको स्टेटस जानना है कि कौन से लेवल पे क्या इस स्टेज पे पेंडिंग है. I pass the question to Sajid. Yes, reports are available in software track probation tracker report level pending. Okay, so इसको रिपोर्ट लेवल से और फ्रंट एंड में भी अपने आगे वहां पे नोट करवा सकते हैं कि कौन से स्टेज पे है. Now we have three more questions from Mr. Ritesh. Question is, can employee view his status of probation confirmation? Yes, employee can view probation status confirm. Employee को email मिलेगा कि इसका probation confirm हो रहा है, तो employee का जो master होता है उसमें employee can view confirmation date and view the type, employee type. Okay, thank you. Last one more question we have from Mr. Hiren. Whether it is available in a old or a previous, or it will be available only in a new version, this feature? Available in a existing version.
both version are available, these features. या हिरन जी, साजिद जी का कहना है कि आपको पुराने वर्जन में भी ये चीज अवेलेबल हो पाएगी. We have 3 more questions now. Mr. Devendra has raised, we are hiring employees on training. After 6 months, employee goes to probation, and then after 6 months, it gets confirmed. Yes, So what is right, the right. process for? So first we appoint the trainee, then after 6 months completion of the probation period, then next 6 month confirm employee. यानी कि पूरा जो साइकिल है जो अभी बताया मैंने कि ट्रेनी होता है उसको आप प्रोबेशन में भी ले जा सकते हो या कंफर्म भी कर सकते हो, बोथ डिपेंड्स ऑन योर पॉलिसी. तो आप ट्रेनी को प्रोबेशन में ले जा सकते हैं और प्रोबेशन के 6 मंथ के बाद उसको कंफर्म कर सकते हो. Okay, thank you, Sajid. We have Okay, thank you. 2 questions related to letters. यहाँ पे प्राची जी का है और संदीप गोस्वामी जी का है कि लेटर्स हम लोग मॉडिफाइड कर पाएंगे, लेटर्स के टेम्पलेट जैसे कंफर्मेशन है, या फिर वो कस्टमाइज कर सकते हैं? जी कस्टमाइज कर सकते हैं उसको. तो आपके जो लेटर कंटेंट होंगे प्राची जी, संदीप जी, वो लेटर कंटेंट आप उसको कंटेंट को अपडेट कर सकते हैं. इसमें आप ऑरेंज टीम की हेल्प ले सकते हैं. So thank you everyone. We have still 2 minutes left. अगर आप किसी को किसी क्वेश्चन हो तो प्लीज शेयर us. Yeah, we have a question from Mr. Tejas. Can we get cross company privilege for probation and confirmation? Yes, sir. मतलब आपके जो ट्रेनी है वो एक कंपनी में है, उनके मैनेजर दूसरे कंपनी में है. आई होप तेजस जी आप ये कहना चाह रहे हैं. तो सर, ये क्रॉस क्वेश्चन कंपनी का रिप्लाई हाँ दीजिए कि उनको क्रॉस कंपनी में कैसे हो पाएगा. हाँ, क्रॉस कंपनी का जो रिपोर्टिंग मैनेजर है वो अगर उसका जो रिपोर्टिंग मैनेजर है दूसरी कंपनी का है, अगर दूसरी कंपनी का रिपोर्टिंग मैनेजर आपने डिफाइन किया हुआ है तो वो उसी तरह जैसे कि वो जैसे दूसरा अप्रूवल करता है उस तरह ये प्रोबेशन भी अप्रूव कर पाएगा वो. ओके, तो क्रॉस कंपनी का होगा वो भी मैनेजर तो वो अप्रूव कर पाएगा. राइट. वी हैव 2 more क्वेश्चन दैट अलर्ट हमें कैसे मिलेंगे कि 6 month प्रोबेशन हो गए हैं. तो अलर्ट आपको डैशबोर्ड पे भी मिल सकते हैं और आपको ईमेल फॉर्मेट में भी आ जाएंगे. HR पे रजिस्टर्ड यूजर ईमेल में भी मिल सकते, ईमेल अलर्ट्स मिल पाएगा. Now we'll take a final question now. How can we define PT difference, that is 300 for the month of February in Maharashtra? पूरे महाराष्ट्र एक स्टेट है जहाँ पे 11 महीने का स्लैब सेम है और 12वें महीने फरवरी का स्लैब अलग है. तो इसका सेटिंग अब कैसे कर पाएंगे ये मिथुन जी जानना चाहते हैं. मिथुन जी, इसमें किस तरह होता है कि आपका जो जैसे कि आपने बताया कि फरवरी में आपका महाराष्ट्र में डिफरेंट है स्लैब, तो अभी मैंने आपको पहले बताया था लेकिन अभी रिकॉल कर देता हूँ कि कंट्रोल पैनल के अंदर जो अपना सेटिंग रहता है प्रोफेशनल टैक्स सेटिंग, उसमें आपने को सिलेक्ट करना है कि पहले तो स्टेट सिलेक्ट कर लेना है कि महाराष्ट्र स्टेट. उसमें आपको अपने ने मंथ और ईयर दिया हुआ है कि कौन से मंथ में और कौन से ईयर के अंदर आपको डिडक्ट करना है कि चेंज करना है. तो आपको फरवरी मंथ सिलेक्ट करना है और 2020 सिलेक्ट करना है. फिर गो बाइंड करने के बाद आपको वहां पे स्लैब चेंज करना है कि जो आपका 300 का स्लैब है वो एंटर करना है. उसके बाद वापिस मार्च मंथ के अंदर आपको जो रेगुलर स्लैब है वो सेट करना है. तो आपको प्रोफेशनल टैक्स का जो सेटिंग है कंट्रोल पैनल के अंदर प्रोफेशनल टैक्स सेटिंग, उसमें जाके आप इजीली कर सकते हो. ओके.
So thank you, Sajid, and thank you all of the attendees. आप लोगों को एक पीपीटी मेल में will be sending you, and जो आपके FAQs है will be welcome you to share us an email on feedback@orangewebtech.com. I hand over to Miss Sonia. Thank you so much. Now, with the end of this Q&A session, we would like to thank Ms. Nidhi Pandya and Mr. Sajid Manwa for sharing such a valuable information with us. I would also like to thank all the attendees who invested their time with us. Further to this, all the attendees can mail us their queries and valuable feedback at feedback@orangewebtech.com. We will address your queries soon as possible, and we will share your feedback with all our internal team. Once again, thanks to all the attendees for joining the session. Please be at home and be safe with your loved ones. Thank you so much. Yeah, thank you everyone. everyone.